Good morning, students. Good morning. Let us start with our next topic, and again, very important topic in today's context, that is marketing information system. So, students, firstly, you must know what is information. Information means any recorded facts or opinions or data, right, about anything. And when we talk about marketing information, it means naturally all those opinions, datas, views, estimates, etc. should be regarding the market, isn't it? So, marketing information system, when we say, it is a system which is created for the benefit of market, for the benefit of getting information about the market, for the benefit of knowing more and more about the market, so that we could perform our marketing function more efficiently, right? As I have given here, that we know that the marketing operations, marketing activities, these have to be performed keeping into view the internal factors of the business and outside factors of the business, outside factors of the organization, right? So, marketing information is system which is created to systematically collect, analyze, interpret, store and disseminate the market information, and where from this market information has to be collected both from internal and external sources, when on regular basis, on continuous basis. ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हर मार्केटर को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मार्केट के बारे में, कंपटीटर्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में, ये सभी जो एक मार्केटर को फंक्शंस परफॉर्म करनी होती हैं, तो इन सब के बारे में उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अप टू डेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट. सो to have that information, he will have to, marketer will have to, or marketing firms will have to create such system. उन्हें कुछ ऐसा सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा जिससे कि ये सारी जानकारियाँ उन्हें टाइमली मिल सकें. क्यों? किस लिए? टू टेक मार्केटिंग डिसीजंस. ठीक है ना? टू टेक मार्केटिंग डिसीजंस, बिकॉज only those marketing decisions which are based on the up-to-date information about the market will be more successful decisions, right? So in this topic we will do in detail about this marketing information system. And one thing I also want to tell you students, that आज के टाइम में मार्केटिंग का काम करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? और अगर मार्केटिंग का काम किया जाता है बिना ये ऐसी इंफॉर्मेशंस के, बिना ये अप टू डेट इंफॉर्मेशंस के, जो कि मैंने अभी बताया मार्केट के बारे में, कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट, कंपिटिटर्स और सभी चेंजेस के बारे में, अगर कोई भी मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म की जाती है बिना इन इंफॉर्मेशंस के, सो इट विल बी जस्ट लाइक दैट एयर विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है? जैसे कि एक हवा तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? इसी तरह से आप मार्केटिंग तो कर रहे हो, मार्केटिंग का काम तो कर रहे हो, लेकिन उन मार्केटिंग के काम करने के लिए जो आपको डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजंस लेने के लिए आपके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशंस नहीं है. इज इट क्लियर? सो जिस तरह से एयर विदाउट ऑक्सीजन इज़ नॉट यूजफुल,
that is harmful. Similarly, marketing function without such informations is of no use. Okay. As I have told you that you are required to know, you must be interested to know कि what is the need of this marketing information system, why it is required, why it is significant for businesses nowadays. As I have told you that every business has to work in coordination with internal and external एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर बिजनेस के अंदर और बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनमें उनके साथ एडजस्ट करके सरवाइव करना होता है. ठीक है. तो उस एडजस्टमेंट के लिए उसको हर मार्केटर को ये इन्फॉर्मेशंस चाहिए मार्केट के बारे में, और उस इन्फॉर्मेशन देने वाले सिस्टम को हम कह रहे हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है. So coming to need, first is anticipation of consumers demand. उपभोक्ताओं की मांग के बारे में अनुमान लगाना, पता लगाना. ठीक है. Today is the time of mass production and mass distribution. लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स की ज़रूरत है आज के टाइम में मार्केट में सरवाइव करने के लिए. ठीक है. लेकिन ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन और लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन तभी संभव है अगर आपको कंज्यूमर की डिमांड का अंदाज़ा है कि व्हाट ही नीड्स, व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डिसलाइक्स. ठीक है ना. कंज्यूमर चाहता क्या है, क्या पसंद है, क्या उसकी नापसंद है. समझ आई ना बात. जैसे कि हमने पढ़ा था मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, एंड दिस मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड. ठीक है. और कंज्यूमर ओरिएंटेशन क्या कहती है कि मार्केटिंग के सभी डिसीजंस कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए हमने लेनी है. ठीक है. अब कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए के लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर क्या चाहता है, ठीक है, क्या उसे पसंद है, ये सभी जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है. तो इसलिए कंज्यूमर डिमांड अगर हमने पता लगानी है तो उसके लिए ऐसा सिस्टम क्रिएट हमें करना पड़ेगा जो कि हमें उनके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशंस देता रहता है कि किस समय उनकी डिमांड में क्या चेंज आया है. नाउ व्हाट दे वांट, नाउ व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. ठीक है. देन इज फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म. हाँ, फर्स्टली व्हाट इज़ कंज्यूमरिज्म. कंज्यूमरिज्म हम कहते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस. जब उपभोक्ता संगठित हो जाते हैं हम उसे कंज्यूमर मूवमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है. जब उपभोक्ता संगठित हो जाते हैं, और उपभोक्ता संगठित क्यों होते हैं, जब उनमें अगर वो मार्केटर से सेटिस्फाइड नहीं हैं. ठीक है. अगर कंज्यूमर के कुछ मार्केटर के अगेंस्ट शिकायतें हैं, कुछ ग्रीवेंसीज हैं. ठीक है. ग्रीवेंसीज क्यों हैं, उन्हें लगता है कि हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है. ठीक. तो आज के टाइम में कंज्यूमर बहुत अवेयर है, जागरूक है. वो अपनी ज़रूरतों को लेके, नीड्स को लेके, राइट्स को लेकर बहुत जागरूक है, और इस वजह से कंज्यूमरिज्म इज़ ग्रोइंग. ये उपभोक्तावाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है. और इस उपभोक्तावाद के बढ़ने की एक वजह और भी है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है. समझ आई ना बात. कंज्यूमर्स आज मार्केट्स लोकल नहीं है, रीजनल नहीं है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, जिनकी वजह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और इसलिए प्रोड्यूसर के लिए उन कंज्यूमर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. ठीक है. तो इसलिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो कि कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर्स के बारे में और प्रोड्यूसर्स को
कंज्यूमर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करें. इज इट क्लियर? देन another reason, another significance of this marketing information system is growing complexity of marketing. मीन्स आज मार्केटिंग का कार्य बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, जटिल होता जा रहा है. आज मार्केटिंग का कार्य इतना आसान नहीं है. हर मार्केटर को उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बीच में मध्यस्थों की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है ना? यू नो इट दैट देयर आर डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्समैन, राइट. फिर एडवर्टाइजिंग के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडियाज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की हेल्प लेनी पड़ती है. इज इट क्लियर? देन डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत तरह के, राइट. सो कहने का मतलब है कि आज मार्केटर के लिए, किसी भी मार्केटर के लिए बिजनेस, मार्केटिंग का बिजनेस करना इतना आसान नहीं रह गया है. इट इज़ ग्रोइंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. और इस वजह से इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की जानकारी हासिल करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो कि मार्केटर को टाइम टाइम पर इन सभी में होने वाले चेंजेस, उनके रिएक्शंस, उनके रिस्पॉन्सेज मार्केटर को दे सके. इज़ इट क्लियर? कि ये जो मार्केटर और जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच इतनी ज़्यादा कड़ियाँ हैं, उनके सारी फीडबैक, उनके सारे रिस्पॉन्सेज प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है सही समय पे सही निर्णय लेने के लिए. और इसलिए ये सिस्टम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, राइट. देन अनदर इज़ बेसिस फॉर मार्केटिंग प्लानिंग. I think I need not explain this. Every marketer has to make plans regarding the marketing, right? And these plans have to be like these all the plans will have to be in coordination to work to perform at marketing level in an efficient manner. और ये जो प्लान्स होती हैं, बेशक इट इज़ प्रोडक्शन प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान, राइट, ये सभी प्लान्स मार्केटिंग पर ही निर्भर करती हैं. इज इट क्लियर? और इन सभी के हिसाब से ही एक मार्केटर प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड, प्राइसेस से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये सारी प्लान्स बना सकता है. ठीक है? तो ये सिस्टम जो उसे टाइम टाइम पर इन सब के बारे में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा. देन अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ चेंजिंग इकोनॉमिक पैरामीटर्स. इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत चेंजेस और बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो गई हैं. आज जो इकोनॉमीज़ हैं वो बहुत डायनेमिक हो गई हैं, बहुत उनमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, राइट. चेंज इन डिमांड, change in supply, then change in market conditions, change in economic conditions, change in population pattern, change in income level, money flow changes, then growth rate changes, national income changes, price level changes, population changes, right. तो ये सारे changes जो कि पूरे इकोनॉमी में होते हैं और ये चेंजेस हर बिजनेस को, हर मार्केटर को प्रभावित करते हैं. ठीक है? तो इन चेंजेस की अप टू डेट इंफॉर्मेशंस, कब कहाँ पे क्या चेंज हुआ है, क्या पैटर्न में चेंज आया है, ठीक है, लोगों की इनकम लेवल में क्या चेंजेस आए हैं, राइट, उनके जो टेस्ट प्रेफरेंसेस में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी परचेजिंग पावर में क्या चेंजेस आई हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स में क्या चेंजेस आई हैं. इज इट क्लियर? और फिर सोशल लेवल पे भी क्या चेंजेस आई हैं, राइट, प्राइसेस, कंपटीशन लेवल पे क्या चेंजेस हैं. सो कुल मिलाकर पूरे इकोनॉमी की चेंजेस, अप टू डेट चेंजेस और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस केवल इस सिस्टम के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं. देन another important factor when we talk about marketing, we cannot
leave the important aspect, that is competition. ठीक है. So another point is changing competitive conditions. Every marketer has to have a continuous eye on his competitors. ठीक है. ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि हर मार्केटर को अपने कंपटीटर की एक्टिविटीज़, राइट, वो अपनी जो स्ट्रेटजीज़ में चेंजेस करता है वो उन पे कंटिन्यूसली नज़र रखना है, राइट. तो इस पूरे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज जो अनेक तरह का कंपटीशन हमें फेस करना पड़ता है, हर मार्केटर को फेस करना पड़ता है, तो उस सारे की जानकारी हासिल भी ऐसे सिस्टम से ही प्राप्त की जा सकती है, राइट. क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन को फेस करना, कंपटीशन को बीट करना हर मार्केटर के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक. तो ये कॉम्पिटिटिव changes are also made available by such an information system. ठीक है. Then another important change that is taking place nowadays, that is development in science and technology. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं. ठीक है. और इस साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से नई नई इनोवेशंस हो रही हैं. नई नई इनोवेशंस के कौन सी इनोवेशंस? न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू मेथड्स, न्यू आइडियाज़, न्यू मार्केट्स आर टेकिंग प्लेस. ठीक. डिस्ट्रीब्यूशन के नए नए तरीके आज आ गए हैं. Isn't clear? प्राइसिंग के नए नए तरीके आ गए हैं. तो इन सभी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर टेकिंग प्लेस, these all are very necessary for every marketer to know, and it is only with the help of such system he can update himself or herself. Is it clear? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एनर्जी क्राइसिस की वजह से, पावर क्राइसिस की वजह से आज सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है. ठीक है. मार्केटर को अपने बिजनेस में सोलर एनर्जी पैनल्स, सोलर एनर्जी प्लांट्स इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं, राइट. देन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी की वजह से, उनकी इंक्रीजिंग प्राइसेस की वजह से नेचुरली मार्केटर्स हैव टू हैव रिसर्च टू डेवलप अल्टरनेटिव मेथड्स, अल्टरनेटिव मीन्स, राइट. और उसकी वजह से आज नए नए ऑटोमोबाइल्स, कार्स एंड बाइक्स एंड टू व्हीलर्स which run on electricity, gas and even on water are being invented. ठीक है. ये इस तरह की नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, नई प्रोडक्ट्स, राइट. फिर जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मेटल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी अब शॉर्टेज हो रही है. ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रही हैं. ठीक है. और इसलिए अब साइंटिस्ट को नए रिसर्चेस करनी पड़ रही हैं कि अब हम क्या अल्टरनेटिव, और उसका अल्टरनेटिव आज आप देखते हैं प्लास्टिक है. ठीक है. और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो किसी टाइम में मेटल से बनी होती थी, आज प्लास्टिक से बनी आ रही हैं. ठीक है. तो इसलिए ये सभी चेंजेस जो हो रही हैं, नई नई प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं, नई वैरायटीज़ आ रही हैं, उनकी नई फीचर्स आ रही हैं. आप मोबाइल्स देख रहे हो, एवरी डे न्यू मोबाइल विद न्यू फीचर्स एंटर द मार्केट. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप देख रहे हैं विद न्यू फीचर्स आर एंटरिंग द मार्केट, राइट. न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स ऑफ सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग आज हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस हो गए हैं. ठीक है.
जहाँ पे कितना स्पीडी आपके पास इंफॉर्मेशंस पहुँचती हैं, कितनी स्पीडली आपके पास चीज़ें पहुँच जाती हैं. ऑल दिस हैज़ been possible due to development in science and technology, isn't it? So you will every marketer will has to have the information about these developments which are taking place around him, because only with the help of these changes, the knowledge about these changes, he will be able to take right marketing decisions. ठीक है ना, ये सभी जानकारियाँ होंगी तभी वो मार्केटिंग से संबंधित सही निर्णय ले पाएगा. Clear? Then again another very important point which shows ki how this marketing information system is important nowadays, and this is information explosion. information explosion, सूचनाओं का भरमार. ठीक, आज इंटरनेट, कंप्यूटर्स और ये सभी सोशल मीडिया, इन सभी की वजह से इतनी इंफॉर्मेशंस आप इकट्ठी कर सकते हो जितनी चाहो तो. ठीक है, यू कैन हैव द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशंस आपके लिए उपयुक्त हैं, कौन सी आपके लिए यूज़फुल है और कौन सी आपके लिए वेस्ट हैं, आपको ये छांटना पड़ेगा. ठीक है, इंफॉर्मेशंस की कमी नहीं है, बट इन इंफॉर्मेशंस में से आपके लिए कौन सी मतलब की है. ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर नॉट रिलायबल, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर नॉट यूजफुल फॉर यू. ठीक है, हर व्यक्ति के लिए सभी इंफॉर्मेशंस यूजफुल नहीं है. तो फिर इसका मतलब है कि आपको उनमें से अपने मतलब की, अपनी ज़रूरत की इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी. सो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा, राइट. कम्युनिकेशन मीन्स दैट the appropriate informations can be what we can say can be found out of that explosion, information explosion. ठीक है, तो ये जो सिस्टम ही है, यही आपके कंप्यूटर्स और आपके सारा वो अपरेटस, आपके सारे टेक्निक्स ही आपको अपनी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन आपको छांट के देंगे. ठीक, एंड another important thing is need of systematic approach. हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशंस प्राप्त करना अभी तक आप समझ चुके हैं बहुत ज़रूरी है एक मार्केटर के लिए. ठीक है, लेकिन इन अ सिस्टमेटिक मैनर. ठीक है, नॉट इन ए हैphazard मैनर. आज मार्केटिंग का काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है. आज मार्केट्स इंटरनेशनल हो गई हैं, मल्टीनेशनल हो गई हैं. इंटरनेशनल चेंजेस मार्केटर के डिसीजंस को प्रभावित करती हैं. ठीक है, और उसके लिए उसके पास सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. लेकिन इन सभी इंफॉर्मेशंस को सिस्टमेटिक ढंग से कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, और फिर उसके बेसिस पे इन डिसीजन लेना मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है. ठीक है, और इसलिए इस में आपको सिस्टमेटिक अप्रोच लाने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो आपको सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सके. इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट the need and significance of this marketing information in today's context. Now coming to the elements or features of effective marketing information system, which means that if we want to have a system which is effective for us, right? If we want to develop such marketing information system which is effective for us, then what should be the features in that system? If all these features are present in that system, then it will be useful for us, otherwise it will not be effective, right? So what should be the elements of this system? First is unified system. यूनिफाइड सिस्टम का मतलब क्या है कि दिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन
system should be such which is unified in nature, which is coordinator in nature, right? Means which coordinates the other activities of the business, right? ये एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करे जिसमें कि प्रोडक्शन भी शामिल हो, फाइनेंस भी शामिल हो, मार्केट की प्राइसेस, कंपटीशन और डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन। मीन्स कि हमने जो पढ़ा था दैट मार्केटिंग मिक्स इट इज़ मेड ऑफ 4 P's। सो यही इसमें बताया गया है कि ये सिस्टम इट शुड बी यूनिफाइड इन द सेंस कि इट शुड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज मेन एलिमेंट्स, ठीक है, so that marketer could take right decisions based on this system. Then next is it should be future oriented, right? Why this system is being followed? It is for future, ठीक है, it should be future oriented, it should be what we can say that it is an ongoing process, right? And it should help in taking future decisions. Is it clear? तो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि फ्यूचर से रिलेटेड नॉट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस, राइट, what is going to happen in market in future about the prices, product, everything. So वो सारी इंफॉर्मेशंस इस सिस्टम से हमें पता लगनी चाहिए। वो अलग बात है कि these informations will be based on the past informations, right? Then another is it should be economical. This system should be economical in the sense economical in terms of time, money and efforts, right? Means that system we have to develop which gives us informations in less time, with less cost and with less efforts, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम जो सिस्टम तो हमने डेवलप किया है लेकिन उस पर हमारा लागत खर्चा इतना ज़्यादा आ गया, इतना समय हमने उस पर लगा दिया है, इतने एफर्ट्स, लेकिन उससे मिलने वाले बेनिफिट्स हमें कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स बेनिफिट्स शुड बी लेस देन द कॉस्ट, right? So economical in the terms of money, time and efforts. Then another feature it should have what? कि MIS should be decision supporting system. डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि ये ऐसा होना चाहिए जिसका काम सिर्फ डाटा इकट्ठा करना नहीं है, डाटा कलेक्ट करना नहीं है, इंफॉर्मेशंस गैदर करना नहीं है, उनको एनालाइज करना नहीं है, बल्कि वो सभी डाटा, वो सभी इंफॉर्मेशंस विच हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। तो हमारा ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें वो हमारे मतलब कि अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशंस राइट टाइम पर मिले ताकि हम अपने डिसीजंस को राइट टाइम पर ले सकें। इज इट क्लियर? सो सिस्टम शुड बी डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। ये सिस्टम अगर हमारे मार्केटिंग निर्णयों को लेने में सहायता नहीं करता देन इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, ठीक है। सो इट शुड बी अ डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इट शुड हैव, what is that? It must be compatible with the organization. Compatible का मतलब क्या है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हो, ठीक है, जो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कंप्यूटर्स, हर स्कूल में कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है जहाँ पे सारा डाटा फीड होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हर कॉलेज में ऐसे ये सिस्टम्स हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे उन्हें सारी इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, सारे डाटा, सारे इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। देन every bank, every insurance company and every organization has got such
information system. But do you think that the software इंस्टॉल्ड इन दीज सिस्टम्स, जो उन कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, क्या वो सबके सेम है? नहीं, सबके अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतें अलग हैं। कॉलेज को कुछ और तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कुछ और तरह का डाटा चाहिए, स्कूल को कुछ और तरह का डाटा चाहिए, कुछ और तरह की फिगर्स चाहिए, कुछ और तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, बैंक की डाटा रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं, इंश्योरेंस कंपनी की डाटा रिक्वायरमेंट कुछ अलग हैं। समझ आई ना बात? तो कंप्यूटर और ये सारे सिस्टम सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, लेकिन उन सभी कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हैं, वो सब अलग अलग हैं। ठीक है, उनमें डिफरेंस क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतें कैसी हैं, उन्हें कैसा डाटा चाहिए, कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके हिसाब से उनमें वो सभी इंस्टॉल किया हुआ है। राइट? सो हमारा भी जो बिजनेस में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है, वो ऐसा ही होना चाहिए, विच फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट्स, which provides us the useful information, the appropriate information, which is useful for our business, which is useful for taking decisions of our business. Otherwise, that system will be of no use. ठीक है? So, to be effective, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़फुल, इफ़ेक्टिव, प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें ये 5 फीचर्स कम से कम होने चाहिए। Right? Okay, students, by this time you must have come to know what is marketing information system. अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि ये सिस्टम है क्या, और एक बिजनेस के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आज के टाइम में हर मार्केटर को ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है? एंड नाउ इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, I am going to show you rather कि what this system is made up of. ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे मिलकर बना है, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या इसके पार्ट्स हैं। ठीक है? सो इस स्लाइड में जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है? और ये क्या है? इंटरनल रिकॉर्ड्स। पहले तो बिजनेस के अंदर, बिजनेस में ही जो डाटा मेंटेन किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, वो। देन मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब हम अपने बिजनेस में जो मार्केटिंग डिसीजन लेते हैं, हमारे डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए क्या, किन चीज़ों की हम हेल्प लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशंस, क्या डाटा की हेल्प ली जाती है। ठीक है? तो ऑफ कोर्स आई हैव शोन दैट इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर इंटर रिलेटेड। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो मार्केटिंग डिसीजंस हैं वो इंटरनल रिकॉर्ड के बेसिस पर लिए जाते हैं, और इंटरनल रिकॉर्ड्स में ही हमारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो दिस वाज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। देन थर्ड कंपोनेंट मैंने आपको बताया है मार्केटिंग रिसर्च। आज मार्केटर को ये रिसर्च, इनोवेशंस भी कंटिन्यूसली करनी होती हैं। ठीक है? ताकि न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स डेवलप किए जा सकें, जैसे जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड्स में चेंजेस हो रही हैं। ठीक है? तो उसके लिए फिर मार्केटर को भी ही विल हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग द रिसर्च वर्क, राइट? एंड देन फोर्थ कंपोनेंट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, वो सारा सिस्टम, राइट, एक तरह से जो इसका आधार है। ठीक है? इन सभी की हेल्प से ये इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित होता है, राइट? सो ये इन चारों फैक्टर से मिलकर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है, और ये सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है? सो आई हैव explained this diagram, but now I'll go to explain this in detail to you. Coming to
first component of marketing information system, which is internal records. As I have told you that this system first of all needs internal records, records that are maintained within the organization. ठीक है? So every marketer, every company makes use of this internal records टाइम अगेन एंड अगेन. ठीक है, हर कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होते हैं. और ये रिकॉर्ड किससे रिलेटेड? लाइक सेल्स से रिलेटेड, कस्टमर्स रिकॉर्ड्स, कस्टमर डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस, फाइनेंशियल डेटाबेस, एट्सेट्रा, इजंट इट? तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारी एक्टिविटीज़, इन सारी फंक्शंस और सारी गतिविधियों से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करके रखती है. ठीक है, किस लिए? ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो इन रिकॉर्ड्स से देखा जा सके. तो विच इज़ कॉल्ड आवर इंटरनल रिकॉर्ड्स और इंटरनल डेटाबेस. ठीक है, ओके. ये जो हम इंटरनल रिकॉर्ड्स मैंने बताया, इसमें क्या क्या किस किस फॉर्म में हम रख सकते हैं? लाइक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर परचेजेस, इनवॉइसेस, बिल्स, ट्रांसपोर्ट बिल्स. ठीक है, हमने जो गुड्स रिसीव किए थे, सर्विसेज परचेज की थी, उनसे रिलेटेड जो हमने पिछले डाटा है हमारे पास, उसको देखा जा सकता है. फिर हमारी सेल्स डाटा, सेल से रिलेटेड हमारे पिछले टाइम में, पिछले डिफरेंट टाइम में, लाइक मंथ वाइज, क्वार्टरली, हाफ मंथली और फोर्टनाइटली, राइट? ये जो हमारी सेल से रिलेटेड हमने डाटा मेंटेन किया हुआ है. हमारी सेल्स कितनी रही हैं, कितना स्टॉक हमने रखा है, इन्वेंट्री लेवल्स, लाइक दिस. देन हमारा कस्टमर डेटाबेस, राइट? हम हर कंपनी, हर मार्केटर अपने कस्टमर से रिलेटेड डाटा भी मेंटेन करते हैं जिसे कहा जाता है कस्टमर डेटाबेस, जिसमें कि हम अपने मैक्सिमम कस्टमर्स का कंप्लीट डाटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं. लाइक देयर नेम्स, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, देयर फाइनेंशियल पोजीशन, देयर पेमेंट पैटर्न्स, एट्सेट्रा. ठीक है ना? तो फिर है डेटाबेस रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स. हमारी प्रोडक्ट्स क्या थी, पहले क्या थी, राइट? उनके बारे में क्या प्राइसेस थे, क्या फीचर्स थे, एट्सेट्रा, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आजकल डीडी नेशनल टीवी की बात कर रही हूँ. डीडी नेशनल कुछ चैनल्स हैं जिनमें कि पुराने सीरियल्स दोबारा से, वो सीरियल जो आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले दिखाए गए थे, उनको इस टाइम रिपीट किया जा रहा है. शायद ये लॉकडाउन की वजह से भी है, ताकि लोगों को बिज़ी रखा जा सके. वो किसी समय बहुत हिट सीरियल हुआ करते थे, ठीक है, ताकि लोगों उनको फिर देखें और ताकि वो अपने घरों में रहें. ठीक है, लेकिन वो सब हमने डाटा मेंटेन किया हुआ था. वो दूरदर्शन के पास सारा डाटा था सारे सीरियल्स का, तभी तो वो दिखा पाए. ठीक है ना? अगर हमने वो अपनी जो पुराने रिकॉर्ड्स थे पुराने सीरियल्स के, उनको ख़त्म कर दिया होता, डिस्ट्रॉय कर दिया होता, तो क्या हम आज उन सीरियल्स को, क्या वो दूरदर्शन आज उन सीरियल्स को दोबारा दिखा पाता? नहीं ना. तो इसलिए ये हमारा जो डेटाबेस है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस हर कंपनी अपना मेंटेन करती है. चाहे वो पिछली प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, परचेजेस से रिलेटेड हैं, सेल से रिलेटेड हैं, कस्टमर से रिलेटेड हैं, हमारे फाइनेंशियल डाटा है, हमारे सेल्स पर्सन से रिलेटेड हैं, सेल्स एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये सारा डेटाबेस हमें आज भी या फ्यूचर में भी कभी भी डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल होता है. तो इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो हमारे अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स, हमारा इंटरनल डेटाबेस होना ज़रूरी है. ओके, देन सेकंड कंपोनेंट मैंने आपको बताया मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. ठीक है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम which provides informations and data about the market. ठीक है, about the environment outside the
बिजनेस आउटसाइड द कंपनी। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट में किया था इंटरनल डाटा, और ये जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है एक तरह से ये वो सिस्टम है जो हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल क्या? अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। ठीक है, डाटा रिगार्डिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग एनवायरमेंटल डिफरेंट फैक्टर्स, राइट? क्या? लाइक कस्टमर्स, मार्केट ट्रेंड, मार्केट फैशन, कंपिटिटर इंफॉर्मेशंस, कंपिटिटर स्ट्रेटजीज, कंपिटिटर प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, कस्टमर के टेस्ट चेंजेस में कब क्या चेंजेस हुए, कब मार्केट में नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई, राइट? कब मार्केट में किन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या फीडबैक रहा, क्या आज के टाइम में प्रमोशन स्ट्रेटजीज हमारे कंपटीटर के द्वारा अपनाई जाती हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम जिसे हम कह रहे हैं, जो कि हमारे बिजनेस से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है, राइट? तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को एफिशिएंट करने के लिए हर कंपनी को, जैसे कि भी मैं बता रही हूँ, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम मेंटेन करना है, और इस इंटेलिजेंस सिस्टम को भी इफ़ेक्टिव करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। ठीक, वो क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने एम्प्लॉयज़, हमें अपने सेल्स फोर्स, सेल्स पर्सन, सेल्समैन, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि मार्केट में होने वाली चेंजेस, कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस में होने वाली चेंजेस, उनके टेस्ट, उनकी डिमांड में होने वाली चेंजेस, उनकी सजेशंस, उनकी कंप्लेंट्स, वो सारी हम तक वो पहुंचा सके। ठीक है, फिर हमें टाइम पर अपने जो मिडल मैन हैं, हमारे जो डीलर्स हैं, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। हमारे रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि वो मार्केट की, हमारे कस्टमर्स की, हमारे कंपटीटर्स की अप टू डेट इंफॉर्मेशंस हमें दे सकें। ठीक है, देन हमारे कंपटीटर्स के बारे में, ठीक है, हमारा जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक कि ये सिस्टम हमें हमारे कंपटीटर्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे। ठीक है, देन हम अपने इस मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में एक और चीज़ कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं कि हम इसमें अपने कुछ पुराने बहुत ट्रस्टवर्दी लॉयल कस्टमर्स को भी शामिल कर सकते हैं। वो कस्टमर्स जो बहुत समय से हमारे कस्टमर हैं, ठीक है, उनको भी शामिल कर सकते हैं। लाइक जिस तरह कि हमने अपने पुराने कस्टमर्स का एक पैनल बना रखा है, और टाइम पर उनसे हम सजेशंस, उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे जो लॉयल कस्टमर हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इज़ इट क्लियर? फिर इस अपने मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ ऐसा भी सिस्टम हमें अपनाना पड़ेगा, जो कि टाइम पर जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है डाटा इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स के बारे में, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, फॉरेन मार्केट्स के बारे में, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट? आप देखते हो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नल होते हैं जहाँ से हमें ये सभी इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं। तो हमें उन सभी सोर्सेज को भी अपने मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? ताकि इन सभी सिस्टम की हेल्प से हमें बिजनेस के बाहर की सारी जानकारियाँ मिल सकें। इज़ इट क्लियर? तो जैसे कि मैंने इन दो कंपोनेंट्स में आपको क्या बताया, एक तो था इंटरनल रिकॉर्ड, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्टिव ऑपरेशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड हमने जो कुछ भी डाटा, जो कुछ भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। फिर बिजनेस से एक्सटर्नल
जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशंस को प्राप्त करने के लिए हमें अपना एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कि हमें डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी, और उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कस्टमर्स, ओल्ड कस्टमर्स, अपने सेल्समैन, अपने मिडल मैन, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, और इन मैगजीन जर्नल्स की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? इसमें हम वो भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपने देखा होगा कि टीवी पर भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, है ना, कोई कार से रिलेटेड प्रोग्राम आता है, मोबाइल से रिलेटेड प्रोग्राम आता है, जिसमें कि आज मतलब लेटेस्ट मार्केट में जितने भी मोबाइल्स हैं या न्यू मोबाइल्स लॉन्च हुए हैं या न्यू कार्स लॉन्च हुई हैं, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होती हैं कि उनके ये फीचर्स हैं, उनके ये फीचर्स हैं, ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं, ये उनकी माइलेज है, ये उनके एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। तो हमें इन सारे माध्यमों को, इन सारे चैनल्स को अपने मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में शामिल करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास हमारे बिजनेस से बाहर की अप टू डेट इंफॉर्मेशन पहुंच सके, राइट। थर्ड कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मार्केटिंग रिसर्च, राइट। In addition to internal records and our external informations through marketing intelligence system, every marketer has to have market research also. ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, वहाँ पे उन्होंने एक अलग रिसर्च सेल या रिसर्च यूनिट जिसे कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेंटेन किया होता है, जिनका काम क्या है कि वो कंटिन्यूसली रिसर्च का काम करते रहते हैं, राइट। लेकिन वाई देयर इज़ नीड ऑफ रिसर्च, राइट, व्हाट इज दिस रिसर्च? एज आई हैव गिवन दैट मार्केट रिसर्च इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन, organization, analysis and interpretation of primary or secondary data for the solution of marketing problems, right? मार्केटर के सामने प्रॉब्लम आती है कि ना कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया है, या कस्टमर अब हमारी प्रोडक्ट को और नहीं खरीदना चाहते हैं, वो कुछ चेंज चाहते हैं, है ना। सो दिस इज प्रॉब्लम बिफोर द मार्केटर। मार्केटर के सामने समस्या है कि अब क्या किया जाए, राइट। और इसका सॉल्यूशन है मार्केट रिसर्च, ठीक। इसके लिए रिसर्च का काम करना पड़ता है, और इस रिसर्च में डेटाज इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक। डाटा इकट्ठा करने के मेनली 2 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी, राइट। प्राइमरी को हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, फर्स्ट हैंड सोर्स भी कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे द्वारा इकट्ठी की जाएगी। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? जहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई हैं, हमें सिर्फ वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से पिक करना है, हमें वहाँ से सिर्फ उठानी है इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन ये मार्केटर ने देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन के द्वारा मिलेगी, प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा मिलेगी, या फिर सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा मिलेगी, और इन सभी सोर्सेज के हिसाब से रिसर्च का कार्य करना पड़ता है, ठीक है। और हमने मार्केटिंग में पढ़ा है, आज जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो होता ही स्टार्ट किससे है? मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च, ठीक है ना। तो आज एक मार्केटर को सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट एनालिसिस भी हम इसे कहते हैं, मार्केट सर्वे भी कहते हैं, मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं, लेकिन बिना मार्केटिंग रिसर्च के कोई भी मार्केटर सही निर्णय नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हमने स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, इफेक्टिव करना है, तो उसके लिए मार्केटिंग रिसर्च करना ज़रूरी है। एंड देन लास्ट कंपोनेंट इज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
ओके, हमने इंफॉर्मेशंस सारी गैदर कर ली, इकट्ठी कर ली, कलेक्ट कर ली, ठीक है, इंटरनल रिकॉर्ड से की है, हमारा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है जिससे हमें सारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। फिर साथ साथ हम रिसर्च भी करते हैं, रिसर्च के द्वारा भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। और फिर एक और तरीका हमें इन सब की हेल्प लेने के लिए करना पड़ेगा, और वो क्या है कि वी विल हैव टू टेक द मेक यूज़ ऑफ सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। किस लिए? जो डाटा है हमने इकट्ठा किया है उनको एनालाइज करना है, जो हमने इकट्ठा अभी तक किया है उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, मे बी विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल टूल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल वो मेथड्स, एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ आवर एफिशिएंट मैनेजर्स। ठीक है, तो ये जो हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से इंफॉर्मेशंस को एप्रोप्रिएट फॉर्म में कंपाइल करके डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशंस। Is it clear? So these were the 4 components how market information system works, and in conclusion we can say that in today's context every marketer should develop such system which provides him or her timely informations, appropriate informations, right, so that efficient marketing decisions could be taken. आज के वातावरण में, आज के डायनामिक एनवायरनमेंट में, आज के चेंजिंग कंडीशंस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सभी इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से ही अपने सही मार्केटिंग निर्णय ले पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज all about your marketing information system. I suppose you must have understood it, right? Okay, goodbye students, keep safe, keep indoors. Okay, bye.